Hello everyone. Today we will start our next element of staffing. In the last video I told you about the elements of staffing. There are 3 elements of staffing, that is recruitment, selection, training and development. Right? We have already discussed about recruitment. After recruitment there will be a process of selection. Recruitment क्या बताया था मैंने आप लोगों को? To give advertisement in any source of media so that number of employees or candidates can attract towards our organization. Now what we get through the recruitment process, we get number of applications in the organization. Now it's time to find out the eligible candidates from these applications and select for our organization. So this will be this thing will be learned in selection process. So it is a process by which we can select the suitable candidate for the vacant job position. First one is preliminary screening. Second is selection test. After selection test we have to take the interview. After taking interview we have to check the references and background of the candidate. After then selection decision, whether we have to select the person or not. Then we have to take the medical exam, then job offer, and after then contract of employment. So let's study and learn about this one by one. First one is preliminary screening. In preliminary screening, what we do in recruitment, what we does that we just advertise our vacancies in the newspaper or in any source of media, right? When we advertise, then what we get pool of applications, right? After getting pool of application, we will find out the eligible candidate from these applications, and the other one who is not eligible for the vacant job position, we just get reject. हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पर हम हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं. मान लीजिए हमने जो जॉब है वो निकाली है MBA कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशंस आई बीटेक स्टूडेंट्स की, एमटेक कैंडिडेट्स की, BBA कैंडिडेट्स की. तो हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, MBA कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको कॉल करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप. और बाकी की जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं विच आर नॉट सूटेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी जस्ट गॉट रिजेक्टेड, हम उनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. जैसे ही प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, आफ्टर देन वी हैव टू डू द सिलेक्शन टेस्ट. एक सिलेक्शन टेस्ट होता है. हम जिन लोगों को कॉल करते हैं उनको दे हैव टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर सिलेक्शन टेस्ट, and these tests are of 5 types, that is personality test, aptitude test, trait test, interest test and intelligence test. Personality test में क्या होता है कि it is related to the personality of the human behavior, how he communicate with the people, whether he should not be short tempered, ना ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, he should have a good communication skill, he should have a good convincing power. If we are going through the marketing person or sales person, then what we have to see in them कि हमें उसमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसमें कन्विंसिंग पावर है या नहीं है, वेदर ही कैन मोल्ड आवर कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट. सो दिस इज कॉल्ड आवर पर्सनैलिटी, हाउ वी वॉक, हाउ वी टॉक, राइट, हाउ वी वियर आवर क्लॉथ्स एंड ऑल. नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट. इन एप्टीट्यूड टेस्ट वी जस्ट सी वेदर हाउ मच दैट न्यू कैंडिडेट इज़ कैपेबल टू लर्न न्यू स्किल्स. जो हमारे यहाँ कैंडिडेट आने वाला है कि ये कितना कैपेबल है न्यू स्किल्स को जानने के लिए, न्यू स्किल्स को कितनी जल्दी कैच करता है. सो इन एप्टीट्यूड टेस्ट वी जस्ट हैव टू सी द कैचिंग पावर ऑफ द पर्सन, दैट हाउ मच कैपेबल ही इज़ टू लर्न द न्यू स्किल्स. बिकॉज आई टोल्ड यू दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट मैनर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क. तो जब अपना हमारा खुद का एक अलग तरीका है काम करने का, देन व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर कैंडिडेट और एम्प्लॉय, दैट ही शुड लर्न एवरीथिंग वेरी फास्ट एंड वेरी इजीली. तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखते हैं कि ये नई स्किल सीखने के कितने कैपेबल हैं, कितनी जल्दी, कितनी क्विकली ये कैच करते हैं नई स्किल्स को. ट्रेड टेस्ट होता है. ट्रेड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि वेदर ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड अबाउट हिज और हर ओन फील्ड और नॉट. वो अपने फील्ड के बारे में जानता भी है, अब उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं और उसको अपने फील्ड के बारे में कोई जानकारी भी है या नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड टेस्ट. आफ्टर देन इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये देखते हैं वेदर द कैंडिडेट इज़ इंटरेस्टेड इन दैट जॉब और नॉट. समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ मनी द पीपल कैन डू एनी ऑफ द जॉब, राइट. पैसों के लिए हम कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वेदर वी आर इंटरेस्टेड और नॉट.
So in interest test we have to find out whether the person is interested in the particular field or not. After that intelligence test, in this test we just have to check the IQ level of the people. हमें उसका IQ level check करना होता है कि how quickly he is giving the answer, right? So this is called intelligence test. So these are the 5 stages, 5 tests the person have to qualify. हर ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 टेस्ट नहीं होते हैं. आई नो कि यू हैव अ क्वेरी दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव दीज 5 टेस्टेड. नो, द आंसर इज नो. सम ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ऑल 5, सम ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ओनली 2 or 3 according to the requirement and need of the organization. It depends, right? Now the third step is employment interview. इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में जब हमारा सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है तो हम अ पैनल विल बी देयर. एक पैनल होता है जो अ जनरल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कैंडिडेट बाय दिस पैनल. उसमें 10 or 15 पीपल होते हैं और वो पैनल आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, राइट? आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू दे विल चेक द रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स. वो आपके बैकग्राउंड्स को चेक करते हैं. वो ये चेक करते हैं whether the candidate don't have any criminal record or police record or what is the family background of the person, है ना? आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो वहाँ से आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लीन चिट है या नहीं है, राइट? जब हम मेडिकल और जब हम बैकग्राउंड्स को चेक कर लेते हैं उसके बाद just a minute, one point is remaining. After checking references and background, fifth point is selection decision, right? आफ्टर चेकिंग द बैकग्राउंड रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड वी हैव टू सेलेक्ट द कैंडिडेट. जब हमें बैकग्राउंड और रेफरेंसेस हम चेक कर लेते हैं किसी भी पर्सन के कि इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेल, जहाँ से प्रीवियसली जहाँ जॉब करते हैं वी जस्ट हैव टू इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, राइट? तो दिस इज़ कॉल्ड चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स. जब हम बैकग्राउंड्स और रेफरेंसेस को चेक कर लेते हैं देन वी हैव टू टेक द सिलेक्शन डिसीजन. हमें क्या लेना होता है, सिलेक्शन डिसीजन. ये आई फॉरगॉट टू राइट दिस इन दीज स्टेप्स. सो दिस इज स्टेप 5. द स्टेप 5 इज सिलेक्शन डिसीजन, स्टेप 6 इज मेडिकल एग्जाम, 7 इज जॉब ऑफर एंड 8 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो सिलेक्शन डिसीजन में हम क्या करते हैं कि जिनके रेफरेंसेस और बैकग्राउंड्स बिल्कुल क्लीन चिट निकलते हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं और बाकी को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. आफ्टर देन मेडिकल एग्जाम विल बी देयर. एक मेडिकल एग्जाम होता है आपका बिकॉज टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द कैंडिडेट इज़ फिजिकली और मेंटली फिट और नॉट. क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि वी हैव टू गिव 10 to 12 hours इन द प्राइवेट सेक्टर्स और इन प्राइवेट कॉरपोरेशंस, राइट? तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें मेडिकल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ देखनी होती है. तो मेडिकल एग्जाम होता है आपका वेदर यू आर फिजिकली और मेंटली फिट फॉर द पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस और नॉट. ठीक है, जैसे ही आप उसको पास करते हैं मेडिकल एग्जाम क्लियर आउट होता है आपका. आफ्टर दैन अ जॉब अपॉइंटमेंट लेटर विल बी ऑफर टू यू. दिस इज कॉल्ड जॉब ऑफर. राइट आफ्टर द मेडिकल एग्जाम द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर यू एन अपॉइंटमेंट लेटर. In appointment letter all the things will be written. After then contract of employment will be there. Contract of employment will take place on the first day of your job. जब आप first day अपनी job पर जाते हैं then on that particular day contract of employment will be signed. एक particular एक employment contract of employment होता है जिसमें कुछ 4-5 पेपर्स होते हैं. उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, आपकी सैलरी के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड आफ्टर रीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल give the signed or give the initial over that contract of employment, and on that particular day the employee can start their work, right? So this is called selection procedure and this is very important with respect to your board examination. So please be careful and try to understand each and every point very clearly.
राइट. सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. आई टोल्ड यू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है. इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द जॉब पोजीशन और नॉट. इफ ही इज एलिजिबल देन वी हैव टू सेलेक्ट दैट those candidates and reject all the other applications. Second one is some selection test will be take place. Personality test, we have to find out the behavior with the help of this test. Aptitude test, in aptitude test we have to find out the capability to learn the new skills. Third one is trait test. In trait test we have to know about his or her existing skills, right. In interest test it help to find out the interest in his or her own field. Next one is intelligence test. In intelligence test IQ level will be test, right. After then employment interview will be take place. In that a journal panel was seated over there, and the general question will be arise from the candidate. After then the organization will check the references and background, like police records and family backgrounds and the previous organization's record and all. After checking all the references and backgrounds, it's time to take the decision whether the candidate should be selected or rejected. After then medical exam will be taken place, because to do a particular job in the organization the person should be mentally or physically fit. After medical exam the job will be offered to the people by offering the appointment letter, and then the contract of employment will be signed by the employer and employee, and on that particular day you can start your work, you can start your job.